गुड इवनिंग एवरीवन। जिंजिनो की आज की प्रोडक्ट मीटिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए, जिंजिनो क्या है। ये कंपनी ने बहुत अच्छे ढंग से एक फिल्म बना करके लगभग पूरा मैसेज जो हम लोग जिसको 40-45 मिनट लग जाते हैं, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पिरो दिया है एक छोटी सी फिल्म में। पहले हम वही थे। Our nature is a powerful designer. When nutrients are in the right balance, we get a superfood. Zinzino provide cutting-edge, best-in-class products from the new science of pharmaconutrition, which uses active nutrients from food to fight the imbalances in our modern lifestyle. Eating fish is healthy. It is a well-known truth that higher levels of omega-3 support a healthy heart, an optimal brain function, and your immune system. How much do you need? To know this, you have to measure the balance of omega-6 and omega-3, which you can do with the Zinzino test. We have tested several 100,000 people. Our statistics show that 95 out of 100 have too much omega-6 and too little omega-3. Our DNA was programmed with a 1-to-1 balance. Today, the average is 15-to-1. According to the World Health Organization, a healthy balance for the heart should be less than 5-to-1, while science recommends 3-to-1. Balance oil is many times more effective than normal omega-3 supplements. These ingredients help support in most foods that are rich in omega-3, like seafood, seeds and nuts. We find them also to be rich in polyphenols. Polyphenols are micronutrients known for their power to reduce oxidation in your cells and cell membranes. Sadly, the omega-3 industry ignored this important truth. They left out the polyphenols. Zinzino respects and understands nature. We combine the highest quality omega-3 with the most potent source of polyphenols from a pre-harvested olive oil. When this works together, it creates a powerful synergy. For the final touch, we added the sunshine vitamin, the key for good immune health. Vitamin D3. Add life to your years. There is no other product like Balance Oil. Test yourself and choose one of our Balance products. Balance Oil with great flavors. So, Zinzino is about balancing your body for omega-6 and omega-3 content. And this is the oil content, omega-6 and omega-3. And your body knows to produce lot many things, not many materials. जैसे आपके नाखून का मटेरियल और आंखों का और कान का और वो पर्दा देखो कैसा है, बाल, दांत, हड्डियां, तो ये सारे मटेरियल तो अंदर ही तो बने हैं आपकी फैक्ट्री में। तो इतना कुछ बनाना जानते हैं, लेकिन ऑयल बनाना नहीं जानते। ऑयल आपको आपके भोजन से ही लेना पड़ता है। तो भोजन से जो ऑयल मिल रहा था वो ओमेगा-3, ओमेगा-6 लगभग बैलेंस ही होना था, ऑल थ्रू 1:1। लेकिन हम जो खाने का अपना स्टाइल बदलते चले गए, सब कुछ फ्राई करके खाते चले गए, तो इससे ओमेगा-6 का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये ओमेगा-6, ओमेगा-3 का इम्बैलेंस ही है जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियों से अवगत करा रहा है। हम परेशान हो रहे हैं बीमारियों से। और अगर हम ओमेगा-6, ओमेगा-3 को बैलेंस कर दें तो वही हेल्दी शानदार लाइफ दोबारा से लीड कर पाए। सो इसलिए कहते हैं कि लीड बैलेंस लाइफ एंड लीड द मसल्स टू डू सेम, टू डू सो विद जिंजिनो। जैसा आप एक बार इस बात को समझ गए, आपने अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस किया, तो दूसरों को भी आप गाइड करिए। अब देखिए ना, हर आदमी चाहता है कि वो अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, है ना, यंग दिखे ऑल थ्रू, जब तक भी जीना है। और जिंजिनो के पास एक इनसाइड आउट यानी अंदर से
आप जिसे मतलब पी लेते हैं, और अंदर से बाहर की तरफ आकर काम करने वाला एक सॉल्यूशन, और एक दूसरा जो बाहर से अंदर की तरफ जाकर काम करने वाला। तो दोनों तरह के एप्लीकेशन ऑल एट द सेम टाइम, वन टाइम, ये मिलकर के आपको आपकी लुक्स को इंप्रूव करती है, और जो एजिंग है वो दूर करती है, आपको बुढ़ापा जल्दी से दिखाई नहीं देता। तो आउटसाइड इन सॉल्यूशन के लिए जिन के पास एक स्किन सीरम इस तरह की बॉक्स में आता है, ये बॉक्स आप देख रहे हो, ये इसमें से ट्यूब निकलती है, और इसका एप्लीकेशन बहुत ही इजी है। अच्छे से मुंह धो करके क्लीन स्किन पे रात के समय आप इतना सा ले लीजिए, और इसको लेकर के आपके चेहरे पे जहां भी इफेक्टेड पार्ट है, जैसे अब मान लीजिए जब एज हो गई तो हमारे यहाँ पे खूब सारी झुर्रियां होंगी, तो अगर वो झुर्रियां हैं तो वहां पे पहले लगा दी। ये बहुत मालिश वालिश नहीं करनी है, सिर्फ अप्लाई करना है, राइट। माथे पे बहुत झुर्रियां हो जाती जहां से दिखाई देता है, तो यहाँ पहले लगा दें। तो क्योंकि ये इस जगह पे आती हैं तो यहाँ लगा दें, इधर आती है यहाँ लगा दें। और जो लेडीज है उनको यहाँ गले पे लगा दें, और जो बचा हुआ इसको थोड़ा सा प्यार से फैला करके बस एक बार पूरे फेस पे फैला देना। दैट्स इट। कठिन काम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये हो गया आपका आउटसाइड इन सॉल्यूशन, और ये कोई भी लगा सकता है, नो इश्यूज। सो मेन कैन यूज इट, क्योंकि वो भी अच्छा दिखना चाहते हैं। विमेन ऑफ कोर्स, वो तो शुरू से ही पता है, फ्रॉम एजेस दे ऑल लव टू लुक गुड। तो आउटसाइड इन अप्रोच विद जिंजिनो सीरम आपको बहुत अच्छा इफेक्ट दिलाती। दूसरा एक इनसाइड आउट अप्रोच है। इनसाइड आउट अप्रोच के लिए ये जिंजिनो का बैलेंस ऑयल है, इसको इंडिया में एसेंट ऑयल बोलते हैं। ये एक मेजर मिलता है इसके साथ, आपने इसमें 10 ml डालना है मेजर करके। बस पी गए, एज सिंपल। इतना सा सॉल्यूशन आपने डेली करना है। अब इसको जो पीना है आपने खाना खाने से पहले, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मीटिंग खत्म होगी तो मुझे खाने पे बैठना होगा। तो खाने से पहले, इसका लॉजिक क्या है, ये ना ऑयल है। ऑयल कईयों को ऐसा लगता है कि जिनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम चल रही है तो उनको थोड़ा पचाने में हो सकता है सूट ना करता हो, गैस ज्यादा बनाए, तो इसलिए बेहतर होता है कि आप इसको खाने से पहले लें। ना, ये दो सॉल्यूशन मैंने अप्लाई किए, आउटसाइड इन और इनसाइड आउट। जो इनसाइड आउट है ये किस एज पे ले सकते हैं? ये 6 महीने के बच्चे से लेके 100 साल के व्यक्ति को किसी को भी दे सकते हैं, एनीवन। कोई चीजें होती हैं कि यार लैक्टेटिंग वुमेन है उसको नहीं देना, प्रेग्नेंट लेडी है उसको नहीं देना, इससे किसी को भी देना है, किसी भी समय देना है। ये किसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रीजन बीइंग कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई स्पेशल फूड सप्लीमेंट जिसमें प्रोटीन या कुछ ऐसा होता है नहीं है, कोई शुगर नहीं है। इट्स ओनली द ऑयल जो आपको आपके भोजन से मिलना था वही ऑयल है, और भोजन के साथ जब आपने ऊपर से भोजन ले लिया तो ये मिक्स होके आपकी बॉडी में सप्लाई हो गया। तो किसी भी एज में कभी भी दे सकते हैं, और इससे जो एज रिवर्सल फेनोमेना है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ ये दो फोटो देख रहे हो, ये मैं मार्च 6, 2021 को ऐसा दिखता था, नवंबर 5 को ऐसा, और आज 25 मई 23 को जो आपके सामने बैठा। ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो फेनोमेना है, ये दिखाने के लिए इसमें ना कोई ट्रिक्स यूज हुए,
कोई फिल्टर्स नहीं है, कोई फोटोशॉप अप्लाइड नहीं है। आप अब तो मुझे सामने मिल रहे हो और कभी भी आप देख सकते हो, ये जो चेंज है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अनबिलीवेबल है बहुत से लोगों के लिए जिन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, जिन्होंने इस्तेमाल किया वो कहते हैं ओ यार ये तो जादू है, और ये सचमुच जादू है। मानते हैं? अगर आपको लगता है ये जादू है तो यस प्लीज जल्दी जल्दी टाइप करके दिखाएंगे। यस 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 हु इन ऑल विल, यस उज्जवल रॉय जी, यस फास्टेस्ट फिंगर होता है ना उसमें, कौन बनेगा करोड़पति में, उसमें उज्जवल राय जी हमेशा ले जाएंगे। और जादू है, राधेश्याम जी कहते यस, सुरेश कुमार जी कहते यस, मणिशंकर जी भी कह रहे जादू है, बीडी फुटेला जी भी यस। ओ वाह, गुड गुड गुड। तो ये सचमुच जादू है। आप आज तक ऐसा हमने आसानी से सुना नहीं है, होता देखा नहीं। अब ये अप्लाई करने का तरीका, जैसे मेन फोक को तो कम होती है जरूरत, तो जैसा मैंने आपको दिखाया ऐसा कर लेते हैं, और फीमेल्स को जरा थोड़ा सा और थोड़ा ज्यादा अप्लाई करते हैं, इससे लगभग 1.5 महीना, पर बहुत चलता है। आदमी के लिए लगभग से 4 से ज्यादा महीने चल जाता है, लेडीज को 2 से 2.5 महीने चल जाता है एक। क्यों? तो ये लोकल एप्लीकेशन है लगानी, क्योंकि और लेडीज को गर्दन पे यहाँ पे थोड़ा और नीचे तक लगाना पड़ता है। जिन्हों की आउटसाइड और इनसाइड अप्रोच विद जिंजिनो सीरम, ये दोनों मिलकर के क्या शानदार रिजल्ट देती है, ये आप देख सकते हो। ऐसी थी आंखों के आसपास, ये कैसी हो गई, ये यहाँ पे एक्ने पिंपल्स, कैसी स्किन थी कैसी हो गई। ये देखिए, एजिंग कहाँ दिखेगी भाई, रिवर्स तो हो ही जाएगी। बस ओनली थिंग इज आपको सीरियसली एंड सिंसियरली इसे यूज करना है, रिलीजियसली, एंड मोर सो यू हैव टू बिलीव इट। बट टू बिलीव इट देयर आर पीपल जो कहते हैं कि हमें पहले रीजन बताओ, क्यों करता है ऐसा, आपने करके दिखा दिया, आपके ऊपर हो गया, हमें क्या पता क्या क्या होता है। तो हम कारण भी डिस्कस करेंगे ये कैसे होता है, पर ये काम करता है, आपको भी प्रूव कर दो। सो इनसाइड आउट की अप्रोच, बिकॉज जो आउटसाइड इन है ये बस बहुत अभी सिर्फ आज 8 दिन हुए हैं इंडिया में आए हुए, और मैंने आज 4थी बार अप्लाई किया है। तो इससे पहले जो चेंज है ना अभी तक का, वो चेंज आउटसाइड इनका नहीं कंट्रीब्यूट हुआ, वो सारा इनसाइड आउट का कंट्रीब्यूट हुआ है, यानी इस अकेले ऑयल का। तो अब देखते हैं, डॉक्टर जितेंद्र जी ने करनाल से अपनी टेस्टिमनी भेजी है। डॉक्टर साहब, मैं जब आपके पास आया तो मैं कई डॉक्टरों के पास अपना इलाज करवाया, काफी निराश होकर 10-15 डॉक्टरों से मैंने अपना इलाज करवाया। मेरे को शुगर बहुत ज्यादा थी एक तो, और मेरा रंग काला हो गया था, चिंता में मैं बड़ा परेशान रहता था, और मेरे पेट के अंदर भी जख्म हो गए थे, बड़ी दिक्कत रहती थी मेरे को, और मेरा वजन भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो जब मैंने डॉक्टर साहब से अपनी समस्या बताई तो इन्होंने मुझे एक बोतल दे दी, और उस बोतल को लेने के बाद 1 महीने के बाद आज मेरी शुगर 350 से 200 पे आ गई है, और मेरा वजन भी 92 किलो था, अब मेरा वजन भी कम से कम 15 किलो, मेरा वेट भी कम हो गया है, और मैं सुबह इस दवाई को ले रहा हूँ। अब मैं डॉक्टर साहब के पास दवाई लेने ही आया हूँ, और मेरे को इसके अलावा एक समस्या और रहती थी, मेरे जो पेट में जख्म थे, मैं उसकी वजह से मैंने अपनी डॉक्टर बंसल साहब से, कल्पना चावला के सामने इंडोस्कोपी कराई, तो उन्होंने बताया कि तुम्हें बड़ी डरा दिया उन्होंने मुझे। तो फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ, और मैं, ये मेरे लिए भगवान का अवतार है, मैं इनका, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनका एहसान कैसे उतारूं। और मेरी दवाई खत्म हुई है, मैं डॉक्टर साहब के पास दवाई लेने आया हूँ। जो आपका फेस इतना ज्यादा काला था, ये इसी बोतल पीने के बाद ही बोतल पीने के बाद ही वह लोग मुझे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या लिया। मुझे तो खैर पता नहीं लगता, क्योंकि जो आदमी रोज रहता उसको मालूम नहीं होता, पर मेरे से रोज लोग पूछते हैं कि आपका वेट कैसे कम हो गया, आपका रंग कैसे साफ हो गया। मैंने उनको बताया कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ, और वो लोग भी उत्सुक हैं कि आप कहाँ से ले रहे हैं। मैंने कहा मैं एकदम ठीक हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये दवाई दूंगा। वो इसको दवाई कहने से नहीं चूकेगी, तो क्यों? क्योंकि उसके इतने इतने रोग दूर हो गए। लेकिन हमारी कंपनी के साइंटिस्ट कहते हैं
ये 1% भी मेडिसिन नहीं है, नहीं है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, किसी सिम्टम को टारगेट करके इसे नहीं बनाया गया है। अरे, और वो कह रहे हैं मेरा पेप्टिक अल्सर ठीक हो गया, वो कहते हैं वो जो फेस पे सोराइसिस था वो ठीक हो गया, वही कह रहे हैं कि भैया मेरा वेट लॉस हो गया, वही कह रहे हैं मेरी शुगर नॉर्मल आ गई। ये सब कुछ कैसे हो गया? दवाई नहीं है। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे कंपनी के साइंटिस्ट बोलते हैं, उनका कहना है कि भाई आपके शरीर से बेहतर इंजीनियर, आपके शरीर से बेहतर डॉक्टर, आपके शरीर से बेहतर कोई पैथलाइन, आपके शरीर से बेहतर कोई फार्मेसी दुनिया में बनी ही नहीं। सब कुछ ये खुद करना जानती है, और जब ये सब कुछ करना जानती है, ये एनालाइज भी कर लेती है कि आप में क्या कमी है, और उसके लिए बनाती भी है। जो चीज उसके लिए मेडिसिन सॉल्यूशन वो बनाती है, उसको सिर्फ पहुंचाना होता है सेल्स तक। हमने जो अभी तक गलती की है अपने खान पान से, हमने वो जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है उसको ओवरलोड कर दिया है। ओमेगा 6 से उसको ओवरलोड कर दिया है, कोलेस्ट्रॉल से उसको हमने ओवरलोड कर दिया है, शुगर से। तो ऐसी चीजें जब हमने ज्यादा भर दी तो वो जो बनाई हुई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको उठा के लेके ही नहीं जाता, सेल्स तक पहुंचाता नहीं। वहां से जो टॉक्सिन होते हैं उनको वापस लाता नहीं, और जो रास्ते में स्पिल होती रहती है, स्किन प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये सारी की सारी उस वजह से होती है। तो विदाउट अ मेडिसिन, वेरी नेचुरली आप इस पर्टिकुलर ऑयल को यूज करके, नो मेडिसिन, आपके कस्टमर्स जिसको मेडिसिन बोलेंगे लेट देम, बट इट्स नो मेडिसिन, और आपका ये ऑयल आपको शानदार रिजल्ट देगा जैसा आप मुझ पे देख रहे हैं। So welcome to Zinzino's Good Health Awareness Seminar. The speaker for you today is Rajneesh Sharma from Chandigarh, and good health inspires change in life. जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है ना, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाती है। और आपके लिए सारी रिसर्च जो की है डॉक्टर क्लाइटन ने, ओलाइडे, डॉक्टर एंजला एमरेजू, डॉक्टर अनंत राज अब्राहम, ये लोग स्वीडन बेस्ड हैं, और इन्होंने ये 2005 में फाइंड आउट कर लिया था कि आपके शरीर को मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। हाँ होती है, कब? जब सिम्टम आपको बहुत तंग करने लग जाए, वो दवाई से आपको तुरंत उसे सप्रेस करना पड़ेगा। वो सिम्टम सप्रेस होगा, रूट कॉज नहीं ठीक होगा। तो इनका कहना था कि इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द रूट कॉज, हमारा आयुर्वेदा तो बहुत देर से कह रहा है, तो जब आप रूट कॉज को खत्म करेंगे, एलिमेंट तब खत्म होगी, अदरवाइज एलिमेंट दबेगी उठेगी, दबेगी उठेगी। तो ये 2005 में इन्होंने मेडिकल जर्नल में, पबमेड में, यूरोपियन जर्नल में ये छाप दिया था। तो अब पहले तो प्रॉब्लम पता की, प्रॉब्लम के बाद उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट डेवलप किया, ओमेगा 3, क्योंकि इनको ये क्लियर हो गया था कि ओमेगा 6 ओमेगा 3 का इम्बैलेंस जो है, दैट इज कॉजिंग ऑल द एलिमेंट्स। तो उन एलिमेंट्स को हटाने के लिए ओमेगा 6 ओमेगा 3 का बैलेंस करना है, तो उसका एक एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट सॉल्यूशन बनाया, और फिर उसको पेटेंट भी करवा दिया, और इसमें कंटिन्यूस रिसर्च चलती रहे। उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी लगाई और R&D भी अपनी ही लगाई। तो लाइफ की जर्नी तो एंजॉयबल हो जाती है एक बार फिजिकल फिटनेस हो, और जब फिजिकली फिट है तो आपकी लाइफ जॉयफुल होती है। लाइफ जॉयफुल होती है तो आप बिजनेस, घर पे, फैमिली के साथ सब कुछ अच्छा समय देते हैं। जब आप अच्छा समय देते हैं तो आपके विचार भी अच्छे होते हैं, और घर से जो विचार आते हैं वो भी अच्छे आते हैं। लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर होता है तो आपका टोटल ऑरा अच्छा होना शुरू हो जाता है। जब ऑरा अच्छा होता है तो चाहे अपने घर के छोटे बच्चों के साथ, चाहे एडोलसेंट के साथ, चाहे वाइफ के साथ, चाहे कुदरत के साथ, जहां भी आप जाएंगे हंसते हंसते एंजॉय करते हुए रहेंगे। और जो नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस आपका, मेरा, सबका, वो क्या है? ये वाला जो फरवरी 94 को रजनीश शर्मा इस तरह का दिख रहा था, मार्च 6 2021 को ऐसा दिखाई दे रहा है। 27 साल की जर्नी में ये बदलाव आ गया।
सबके साथ होता है। हाँ, बस फर्क ये होता है मुझे बहुत जल्दी हो गया ये बुढ़ापा, और लोगों को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, पर आता जरूर है। एवरीबडी नोज के दिस गोना हैपन, और इसके लिए कुछ अलग अलग इनपुट्स हैं जो हमारी बॉडी को जल्दी या लेट बुढ़ापा देते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फूड है, जो कि 97% रिस्पॉन्सिबल है हमारे बुढ़ापे, हमारी एलिमेंट्स का। दूसरे नंबर पे पानी का भी रोल बहुत बड़ा है, और आपकी हवा जहां आप सांस लेते हो उसका भी बहुत रोल है। आपके थॉट्स, आपके विचार, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। आपके पोस्चर्स, आपका उठना बैठना काम करने का तरीका, उससे भी उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो जो फूड की प्रॉब्लम है वो तो मेडिसिन ही ठीक करेगी, आपका भोजन ही ठीक करेगा। मेडिसिन कंसेंट्रेटेड फॉर्म, भोजन मेडिसिन का सॉफ्ट फॉर्म, या फिर आप कह लीजिए भोजन का कंसेंट्रेटेड फॉर्म वो मेडिसिन, और अदरवाइज भोजन। सिंपल, बिकॉज इट कैरीज मिनरल्स एंड ऑयल्स। ये आपके शरीर की नेसेसिटी है जिसको वो पहुंचाता है। मिनरल को कन्वर्ट करके अलग अलग प्रोटीन और मटेरियल्स बनते हैं, और ऑयल से आपकी ग्रीजिंग, ये वो जितना कुछ है ये उससे चलता है। पानी, हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पानी है, और बहुत सारा फ्लो 70% से ज्यादा आपकी बॉडी में पानी होता है। तो पानी की शुद्धता, नीटनेस, क्लीनलीनेस, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर वो खराबी होती है तो आपको 3% बीमारियां उससे भी आ रही है। हवा, जिसका काम है आपकी हर चीज को कैटेलाइज करना, हर एक्शन को चलाने के लिए। जो ऑक्सीजन है उसके बिना कुछ भी संभव नहीं, तो हवा भी बहुत अच्छी चाहिए। और थॉट्स, अरे बाप रे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फूड की खराबी है तो फूड ही ठीक करेगा, पानी की खराबी है तो पानी ही ठीक करेगा। फूड कैसा भी खिलाते रहो, जितनी मर्जी दवाई दो, नहीं ठीक होगा। हवा की खराबी है, पानी भी देते रहो, फूड भी देते रहो, नहीं ठीक करेगा। आपके थॉट्स की खराबी है तो थॉट्स ही ठीक कर पाएंगे, जैसा मर्जी भोजन देते हो। तो यहाँ पे वो थॉट्स के लिए, तो इसके लिए हर चीज के लिए अलग थेरेपी है। हम क्या सोचते हैं, जब एक बीमारी एक डॉक्टर के पास नहीं ठीक हो रही, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी वही टेस्ट कराता है, उससे भी वही पता लगता है। फिर उसी मेडिसिन को, जो सोल्यूशन उसे मालूम है, वो इस कंपनी का लिखता है, वो दूसरी का लिखता है, हमें पता लगता है कि दवाई बदल दी, हम फिर खाते हैं, लेकिन असर नहीं होता। बाद में कहते हैं सारे डॉक्टर चेक कर लिए हमने, एम्स में दिखा लिया, यहाँ कर लिया, वो कर लिया, कुछ असर नहीं होता। भाई फूड की बीमारी नहीं है तो फूड क्या कर लेगा? फूड ही तो है। अगर आपको केमिकल फॉर्म में दिया तो एलोपैथी, स्टेबल फॉर्म में दिया तो आयुर्वेदिक, एटॉमिक फॉर्म में दिया तो होम्योपैथी, दिया तो फूड ही ना। तो फूड की बीमारी फूड से ठीक होगी, उसकी डेफिशिएंसी। पानी की पानी से होगी, हवा की हवा से होगी, थॉट्स की थॉट से होगी। तो वो मेडिटेशन ही ठीक कर पाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी। करते रहो ट्राई। पोस्चर की एक्यूप्रेशर, सुजोग, या ऐसी बहुत सारी हैं पद्धतियां, योगा। ये पोस्चर की आपकी बीमारी उससे ठीक होनी है। वो आप भोजन बदलते रहो, बादाम खा लो, ये कर लो, दवाइयां ले लो, नो। सो ये 5 जो हमारे इनपुट है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी मोस्ट क्यू एलिमेंट्स के लिए, तो जिसमें 97% फूड रिलेटेड है। तो फूड में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज ओमेगा 6, ओमेगा 3 का बैलेंस। ओमेगा 6 ये इंफ्लेमेटरी होता है, ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी। अगर ये दोनों के दोनों बैलेंस रहे बॉडी में, और जो भी अगर आपका भोजन अच्छा है, मेडिसिन कैसे किसी भी फॉर्म में गया तो वो तुरंत सही काम करेगा। आपने सुना होगा, हमारे पंजाब में बहुत कंप्लेंट होती है, ओ बेटे को बहुत कुछ खिलाती हूँ जी, कोई लगता ही नहीं खाया पिया। अब खाया पिया कहाँ लगेगा? ओमेगा 6 आपने भर दिया उसको परोठे खिला खिला के। तो ओमेगा 6 अगर बॉडी में ज्यादा है, तो अब जो आपका जो सही अच्छा भोजन दे रहे हो, उसका जो मिनरल है वो कैरी नहीं करेगा, सेल्स तक पहुंचेगा नहीं, तो फिर उसका क्या फायदा? वो वेस्ट जा रहा है, इसलिए नहीं लगता। ओमेगा 6 ओमेगा 3 बैलेंस बहुत जरूरी है, सबसे पहले वो करना आपको पड़ेगा। और ओमेगा 6 ओमेगा 3 को बैलेंस करने का दुनिया का दी बेस्ट सॉल्यूशन हम आपके लिए लाए हैं, ये जिंजिनो का एसेंट ऑयल।
अब जरा एक बड़ी बात है, ये दी बेस्ट सॉल्यूशन मुझ पे असर कर रहा है इसलिए दी बेस्ट है भाई। जिस कंपनी ने बनाया उसका बेबी है, दी बेस्ट सॉल्यूशन भाई। तो जो मार्केट करना चाहेगा वो भी बोलेगा दी बेस्ट, बस नंबर 1। यस, ये हमारा इमोशन है। लेकिन जो मेडलाइन जर्नल है, पबमेड, उसमें सिंटेफ स्टडी ग्रुप ने ये मेंशन किया है, रिसर्च किए, पैरामीटर्स चेक किए और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड का बेस्ट सॉल्यूशन है ओमेगा 6 ओमेगा 3 को बैलेंस करने के लिए। निकल गई ना बात इमोशन से बाहर, रियलिटी की बात आ गई। तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन एंड द इजीएस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब ये जो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस की वजह से तो पैरालिसिस, हार्ट पेन, आर्थराइटिस, सोराइसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन कभी तो समय था जब इतनी बीमारियों के नाम ही नहीं पता था, होती होंगी तभी तो नाम रखते। तो ऐसा जो समय था, तो मान लीजिए मुझे ही अब आज कोई एलिमेंट है, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे पूछा कि भाई जब टेस्ट कराया तो आपकी बॉडी में ये ज्यादा है या इसकी डेफिशिएंसी है, वही एलिमेंट है, उसी से सिम्टम आ रहा है। क्या कभी आप सही थे? आपकी ये ज्यादा या कम तो नहीं था? बीमारी कब से? ये पिछले 6 महीने से, 2 साल से, 1 महीने से, वट एवर टाइम हम बताते। तो जब सही था तो तब सही क्या था? ये सब बराबर ही तो था। अगर आयरन कम है तो आयरन नॉर्मल था, कैल्शियम कम ज्यादा तो कैल्शियम था नॉर्मल, मैग्नीशियम नॉर्मल था। तो जब सब नॉर्मल था तो तब कौन चेक कर रहा था? जब सब नॉर्मल था तब कौन बना के उसको, अगर कम था तो बढ़ा रहा था, बढ़ा तो कम कर रहा था? आपकी बॉडी, आपके अंदर का इंजीनियरिंग सिस्टम। तो वही मेजर कर रहा था, वही बनवा रहा था। वही प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एक डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्री में, जो ये माल ज्यादा हो गया उसको, उसकी प्रोडक्शन बंद कर दो, ये कम हो गया उसको बढ़ा दो। तो हमारा पीपीसी प्रोग्राम जो डिपार्टमेंट है वो भी काम कर रहा था। तो हम सब कुछ नॉर्मल चल रहे थे। यही साइंस है जिसको ध्यान से समझने की जरूरत है। आज हमारी अगर हेल्थ पुअर है तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओमेगा 6 ओमेगा 3 की जब रीजन टेस्ट किया गया तो पता लगा 1850 में जो डीएनए की थी वो 1:1 हुआ करता। 1900 में 3:1 पे पहुंच गया, 1960 में 4:1 पे पहुंच गया, 2000 में 21:1 पे पहुंच गया, 2020 पे 25:1। यहाँ पे 25 इज ओमेगा 6 एंड 1 इज ओमेगा 3। यानी ओमेगा 3 आज अगर एक पार्ट है तो रेशो में 25 पार्ट्स, उसका 25 गुना हमारी बॉडी में ओमेगा 6 प्रेजेंट है। तो ये क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? तो इसके लिए पहले के जमाने में हम रॉ सीड्स, नट्स खाते थे, रॉ वेजिटेबल, रॉ फ्रूट्स खाते थे, रॉ सी फूड, पता नहीं क्या क्या, कुछ जो भी खाना पड़ता था रॉ खाते थे। फिर आया थोड़ा सा समय और फिर हमने उसको बॉईल करना शुरू किया, उसे रोस्ट करना शुरू किया और सन 1960 के बाद तो एक सी चेंज आ गया हमारे फूड की सोच में, जब फिश भी फ्राइड, आलू भी फ्राइड, पकौड़ा भी फ्राइड, फिश चीज पकौड़ा भी और चिकन फ्राई, सब कुछ फ्राई, आलू के पतले पतले वेफर्स काट लिए, फ्राई फ्राई फ्राई, सब कुछ जब फ्राई। तो फ्राई से क्या हुआ? फ्राई से ओमेगा 6 का कंटेंट ओमेगा 3 को ओवर पावर कर गया, ओमेगा 6 ज्यादा बॉडी में जाना शुरू हो गया। दैट इज द रीजन कि आज 25:1 ग्लोबल एवरेज है। और ये जो इम्बैलेंस है इसी की वजह से ब्रेन फंक्शन कमजोर हुआ, हेयर की क्वालिटी कमजोर हुई, हार्ट फंक्शन कमजोर हुआ, हमारी स्किन ने इलास्टिसिटी लूज की, हमारे ऑर्गन जो कमजोर हुए और हमारे जॉइंट एंड मसल पेन होना शुरू हो गया। किसकी वजह से? ओमेगा 6 ओमेगा 3 का इम्बैलेंस से। और इसी के कारण तो अब हार्ट ब्लॉकेज, सर पैरालिसिस, आर्थराइटिस, पार्किंसंस, यूरोलिथाइसिस और ऑस्टियोपोरोसिस, सोराइसिस, एक्जिमा, हेयर फॉल, स्पॉन्डिलाइटिस एंड मेनी मोर, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां। ये नाम हो सकता है मैं अच्छा ना प्रोनाउंस कर रहा हूँ, रीजन बिंग आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम इंजीनियर। मैंने कहा ना आपसे, ये ऑयल लेकर के लोग इसको दवाई बोलेंगे, आप कहेंगे कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं मैनेजमेंट वाला हूँ, मैं फला हूँ, वो कहेंगे डॉक्टर साहब। क्योंकि जिसको आराम मिलेगा वो आपको वही कुछ बोलेगा। So the balance is so important in your life.
ओमेगा 6 ओमेगा 3 का, एंड वेयर डू आई स्टैंड, मेरा कहाँ है इस वक्त बैलेंस। तो ये ओमेगा 6 ओमेगा 3 का बैलेंस चेक करने के लिए हमारी कंपनी ने एक शानदार किट बनाई है। जैसे ये एक कार्ड निकलता है, इस कार्ड का एक हाफ टीयर ऑफ करके आप अपने पास रख लेते हो क्योंकि इसके ऊपर कोड है, और यहाँ पे आपने ब्लड 2 स्पॉट लगा देने हैं और उसको इस किट में पैक करके, ये किट जो उसकी सेफ्टी, आपका ब्लड खराब ना हो जाए वहां तक पहुंचते पहुंचते, इसमें पैक करके आपने इस एनवेलप में डाल करके इसको सेंड कर देना है। इस पे एड्रेस भी लिखा हुआ है कहाँ भेजना है, आपने सिर्फ दिल्ली तक भेजना है। दिल्ली के बाद इसे स्वीडन में भेजेगी कंपनी खुद से, और वहां से ये टेस्ट रिजल्ट आपके आ जाएंगे। और स्वीडन में कहाँ भेजती है, ये डेनमार्क की वाइटस एनालिटिकल सर्विसेज में आपका अब ये टेस्ट हो रहा है सिंपल ओमेगा 6 ओमेगा 3 का, तो वहां से वो आपकी रिपोर्ट आ जाती है। आइडियली साइंटिस्ट का मानना है कि ओमेगा 6 3 टाइम्स भी अगर आपकी बॉडी में हो, ओमेगा 3 100 ml सपोजिंग मान लो, और ओमेगा 6 उसका 3 गुना 300 ml भी हो, तो आपकी बॉडी नॉर्मल बिहेव करती है। WHO कहते कोई बात नहीं यार, 4 तक भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन नेचर ने जब आपका डेवलप किया था तो 1:1, अब एक टॉलरेंस होती है। इंजीनियर्स जानते हैं कि हर चीज को, मान लो ये बॉटल इतने डायामीटर के तो कोई बात नहीं, 1 mm बड़ी होगी तो चलेगा, छोटी होगी तो भी चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं चलेगा क्योंकि अंदर की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इसको टॉलरेंस बोलते हैं। तो टॉलरेंस हमेशा आदमी की तरफ, इंसान की तरफ WHO का झुकाव रहता है। वो कहते कोई नहीं 4:1 भी हो जाए। नेचर ने बनाई थी 1:1, तो ये 3:1 से 1:1 के बीच में अगर हम मेंटेन करेंगे तो किसी तरह की एलिमेंट रहेगी नहीं, बॉडी अपने आप से बहुत अच्छे से बिहेव करे। तो अब मैं कहा हूं, कैसे पता लगेगा, तो मुझे भी टेस्ट करवाना पड़ा। वर्ल्ड एवरेज है 25:1, लेकिन हम हिंदुस्तानी बड़े महान, मेरा निकला 68:1, इसीलिए मैं बड़ा पहलवान। कैसा पहलवान, 1992 से डायबिटिक, 2014 में जबरदस्त हेपेटाइटिस, उस हेपेटाइटिस की वजह से ये बाल गए। वो जो आपको फोटो दिखा रहा था ना कि पहले बाल सब थे आम आदमियों की तरह और एकदम से सब चेंज हुआ। तो 2018 में स्टंट पड़ा, हार्ट अटैक आया, यस, और कोविड आया तो 2 बार लगा, क्योंकि अंदर इम्यूनिटी पावर ही नहीं थी भाई, और ये पता भी नहीं था कि क्यों ऐसा। जब ये हमने रिसर्च पता लगी, जब हमें ये समझ में आया, तब ये टेस्ट करवाया तो भाई 68:1 है, कहाँ होना चाहिए था 4:1। तो इसलिए भाई आप वल्नरेबल थे। हर बीमारी के लिए जो भी आती है भैया तो आपको गिफ्ट में मिलती है, क्योंकि जब ये टेस्ट होता है तो ये इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें कुछ इस तरह से मिल जाती है कि भैया आपकी इम्यूनिटी 0, जो ओमेगा 3 का इंडेक्स है वो 0.9, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी 37.9 पे खड़ी है, जो कि 9 से नीचे होनी चाहिए। तो ऐसे ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट में मिल जाए, हम जैसे इंजीनियर्स के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए, लेकिन डॉक्टर के लिए भी आपको इसी रिपोर्ट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी मिल जाती है। वो न्यूमेरिकल वैल्यूज पढ़कर आपके लिए आपको सजेशन कर सकते हैं। अब आइए इसको इंजीनियरिंग भाषा में समझते हैं, मैथमेटिकल भाषा में, कि कितना आसान है। दरअसल हमने समझा नहीं अभी तक। क्या ओमेगा 6 ओमेगा 3 68:1 निकला, तो मान लिया कि मेरी बॉडी में ओमेगा 300 ml है, तो इसका मतलब ओमेगा 6 6800 प्रिवेल करता है, रेशियो प्रोपोर्शन है ना 68:1। तो यहाँ पर अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाके बोलूं कि यार मेरे तो ये कोलेस्ट्रॉल चेक करो, उसने कहा बहुत कोलेस्ट्रॉल है जी, शुगर बढ़ी है जी, ये बहुत कुछ है, अब क्या करना पड़ेगा, ये शुगर के लिए खाओ, ये आप ब्लड थिनर खाओ क्योंकि बीपी भी 155 एवरेज रहता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये कब तक खानी पड़ेगी? भाई अब तो जब तक जीना है तब तो खानी पड़ेगी। क्यों जी? क्योंकि आपका ब्लड जो थिक हो गया है अब वो पतला नहीं हो सकता, तो उसको पतला करने के लिए आपको हर रोज ये केमिकल डालना है। ये केमिकल उसे थिन करेगा, सो दिस इज कॉल्ड अ ब्लड थिनर।
ये टेलवेस 20, ये वो पता नहीं कितनी दवाइयों के नाम होंगे, तो आपको ये अब हर रोज खानी। ठीक है साहब, हमने मान लिया, हमने खाना शुरू किया। पर जब मिला हमें जिंजिनो, तब हमें एक बात समझ में आई, यार रेशो प्रोपोर्शन ही तो है। अब मैं 68 वाले को वैल्यू को नीचे नहीं कर सकता, यही डॉक्टर ने बताया ना। हाँ जी, तो जो ओमेगा 3 वाली वैल्यू है वो तो बढ़ा सकता हूं। तो जो 100 ml है उसमें अगर 900 ml एक दिन में नहीं डलेगा, 10 ml पर डे ले सकता हूँ। ये एक डोसेज होती है हर चीज की। तो ये मेरे बॉडी वेट पे 70 kg वाले के लिए 10 ml से ज्यादा पर डे मैं नहीं ले सकता। उससे ज्यादा वो ले सकते हैं, नुकसान कोई नहीं, साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन वो किडनी पे ही लोड डालेगा बिना वजह का, क्योंकि उसको ऑयल को फिर उसे डिस्कार्ड कर देगा किडनी के थ्रू। बाकी जितना यूज करना था दैट इज ओनली 10 ml पर डे। तो जितना आपका वेट है उसको 0.15 से मल्टीप्लाई कर दे। सपोजिंग आपका वेट 100 है तो आप 15 ml लेंगे, अगर आपका वेट 60 है तो 9 ml लेंगे। तो दैट इज द कैलकुलेशन टू कैलकुलेट द डोसेज हाउ मच यू टेक पर डे। तो मैं 10 ml ले सकता हूं। तो 900 ml जब मेरी बॉडी में एंटर कर जाएगा ये मेरे ब्लड में, तो मेरी जो रेशियो आ जाएगी 6800 तो वही रहेगा, ये 1000 पे पहुंच जाएगा। तो 6.8:1 आए तो WHO के करीब करीब तो आ जाऊंगा ना, वल्नरेबिलिटी तो कम होगी। ये जो बदलाव देखा ना आपने, जो मैंने दिखाया, ये इसका कमाल है। ओमेगा 6 ओमेगा 3 के बैलेंस का, नो मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट नहीं। वो जो मैं भोजन खाता हूं वही मेरा सप्लीमेंट है। वो लगता नहीं था, अब लगने लगा। सिंपल। मेरी जो शुगर की 2000 mg सुबह 2000 mg शाम को खाता था, अब 1000 mg खाता हूं। वो 2000 के साथ 165 185 तक आती थी, खाली पेट वाली, रैंडम होती थी 260 285 300 4000 mg पर डे खा करके मेटफॉर्मिन। और अब जब मैं 1000 पर डे खाता हूं तो अब आती है 110 115 125 मैक्सिमम, जिस दिन खूब तसल्ली से जलेबी जलेबी सब खाई हो। और जो खाने के बाद की 165 185, इससे ऊपर कभी नहीं। तो ये सब बदलाव, वो मुझे तो डॉक्टर ने कहा था पैनक्रियाज एक बार बंद हो गया तो काम नहीं करेगा, अब कौन कर रहा है? पैनक्रियाज ही कर रहा है। तो यहाँ इस साइंटिस्ट की बात जस्टिफाइड लगी कि भैया जब तक आपके ऑर्गन आपके शरीर में है सब काम करते हैं। ओनली थिंग इज दे डोंट कैरी द मटेरियल, बिकॉज आपके ब्लड के अंदर कैपेसिटी नहीं बचती कैरी करने की। आपने उसको ओवरलोड किया हुआ है विद व्हाट? ओमेगा 6, विद कोलेस्ट्रॉल, विद शुगर्स। तो अगर आप उसका कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, नॉर्मल जो नैरो गेज से ब्रॉड गेज बना देते हो, तो अब उसमें वो नीचे से आपका मटेरियल उठा के सेल्स तक पहुंचाने लगेगा, वहां से टॉक्सिन वापस लाना शुरू कर देगा। अगर होगा तो आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। वाह, क्या जेन्युइन साइंस थी, और खासतौर से हमारे जैसे इंजीनियर को समझ में आने वाली साइंस। और इसी का फायदा हुआ आपके सामने। और जैसे ही जब 1000 से 2000 mg पे ml पे पहुंच जाऊंगा तो ये 3.4:1 पे आ जाएगी। और जब 3000 ml हो जाएगा 2.3:1 आ जाएगी। यानी अब मैं जितना इसको पी लूंगा उतना शरीर अच्छा होता चला जाएगा। बस इतनी सी साइंस है, कहाँ मेडिसिन की जरूरत है। अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छे थॉट, बस ये रखिएगा। और साथ में ओमेगा 3 सप्लीमेंट करते जाइएगा। कब तक खाना पड़ेगा, ये बहुत क्वेश्चन आता है, कब तक खाना पड़ेगा? यस यस यस, कब तक खाना? जब तक आपका बैलेंस आ जाए। अब ऐसा इम्बैलेंस अगर मैंने 10 साल में गेन किया था, तो एक बार बैलेंस आने के बाद इम्बैलेंस फिर से 10 साल में हुआ, तो मैं 10 साल नहीं लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, पर बैलेंस में रहना है तो लेता रहूंगा। नहीं, मैं इसको लगातार भी लेना नहीं चाहता, तो अपना भोजन बदलना है भाई। मेरे भोजन के थ्रू ओमेगा 6 आ रहा है, मुझे वो फ्राइड बंद करना होगा, मुझे वो रामदेव जी की सारी बातें माननी पड़ेंगी, वो बाजरे की खिचड़ी और वो घिया का जूस और ये सब कुछ वैसा खाना पड़ेगा। डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी की बात माननी पड़ेगी, 2 बजे तक मुझे कुछ नहीं खाना, 2 बजे तक सारे फ्रूट्स एंड सैलेड्स खाने हैं। उतने महंगे, उतने डिफिकल्ट,
वो सब प्रोसेस कर सकता हूं तो वो करूंगा, मैं नहीं पीऊंगा, ये उसमें क्या है। और अगर वो महंगा लगता है और मुश्किल लगता है और आसान नहीं होके लगता, तो बस इससे आसान क्या है, एक 10 ml भरा और पी लिया। और ये उससे ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है उसी प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम को मुझे उधर से उस प्रोसेस से करना है। ओमेगा 6 घटाना है, ओमेगा 3 बढ़ाना है। ओमेगा 6 घट नहीं सकता, सिर्फ इनटेक कम कर सकता हूं, तो वो तो ब्लड में ऐड हो चुका है। ओमेगा 3 बढ़ाना है, वो जो मैं सैलेड खाऊंगा राय चौधरी जी की वजह से, और वो जो मैं फ्रूट्स खाऊंगा उससे ओमेगा 3 जाएगा। ये होता क्या है ओमेगा 6 ओमेगा 3 भाई? ऑयल होता है यार, ऑयल होता है, जो ईटेबल ऑयल होता है, बस वही ओमेगा होता है। अगर उसे खाने लायक है, उसकी विस्कोसिटी अलग है, जो तरल ज्यादा है वो ओमेगा 3 है, जो उससे ज्यादा थिक है वो ओमेगा 6 है। और थिक है तो 9 11 12 6 7 पता नहीं, कुछ भी अलग अलग विस्कोसिटी। लेकिन ओमेगा सही है, तब अच्छा है, तब इफेक्टिव है, अगर उसमें पॉलीफिनॉल्स की मात्रा है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। पता लग गया। मछली के तेल में होता है, तो सब लोग, मैं खाता हूँ जी फिश ऑयल, मैं खाता हूँ जी वो कैप्सूल, मैं लेता हूँ जी क्रेल ऑयल। अरे लेते हो, लेकिन जो उसके मैंडेट है कि आप इसे, कोई भी कंपनी ये ऑयल बना करके एक खास प्रोसेस है, उसको उस प्रोसेस से फिल्टर किए बगैर नहीं बेच सकती। जब वो फिल्ट्रेशन होती है तो उस ओमेगा 3 में से जो पॉलीफिनॉल्स के कंटेंट है 40% रह जाते हैं। हमारी कंपनी ने भी जब फिश ऑयल लिया 40% रह गए। अब हमारे साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भैया जब 40% ही रह गए तो इसकी इफेक्टिवनेस तो एक्चुअली पॉलीफिनॉल से है। ऑयल तो ऑयल है, ठीक है, ऑयल मिल गया, वैसे किसी सब्जी से, वैसे वो अखरोट बादाम सबसे ले लिए तो भी चलेगा। लेकिन यार जब ओमेगा 3 खास तौर पे फिश ऑयल में दे रहे हैं, और इसमें जो खास बात थी उसी खास बात को हम इस्तेमाल करें, तब शरीर पे इफेक्टिव बनाए। तो उसके लिए जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि अब पॉलीफिनॉल्स तो डाल नहीं सकते, क्योंकि उस प्रोसेस के बाद 40% रह गए। तो इन्होंने इसको सिनर्जी का फार्मूला बनाया। इसके अंदर बड़े स्पेशल ऑलिव ढूंढे, यंग ऑलिव, और उसको कोल्ड प्रोसेस से निकाला, उस ऑयल को डाल करके, तो पता करा कि पॉलीफिनॉल्स 104% हो गए। दुनिया के जितने भी दूसरे आपको ओमेगा 3 मिलेंगे उसमें 40% पॉलीफिनॉल्स होंगे, इसमें 104% पॉलीफिनॉल्स होंगे। EPA DHA बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं आपके ब्रेन के सेल्स को, हार्ट के सेल्स को बनाने के लिए, उसकी मात्रा भी इसके अंदर है। विटामिन डी, विटामिन ई होना चाहिए, उसकी मात्रा भी इसके अंदर है। और ये सब चीज मिला करके एक कंप्लीट आपके लिए ऑयल बना, एक एसेंशियल ऑयल बना, और इसकी वजह से ये दुनिया का सबसे इफेक्टिव ऑयल है। और ये बात कंपनी ने तो कहनी, क्योंकि उसने बनाया है इसको। रिसर्च स्टडी ग्रुप सिंटेप ने 2010 में टेस्ट करके रिपोर्ट किया कि हाँ ये दुनिया का सबसे बेहतरीन है। तो ओमेगा 3 जब बैलेंस हो जाता है तो आपके बॉडी के फंक्शंस हैं, ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। ब्रेन फंक्शन नॉर्मल होता है, हेयर क्वालिटी अच्छी होती है, हार्ट फंक्शन अच्छे हो जाते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी होती है, इनर ऑर्गन्स अच्छे काम करने लगते हैं, जॉइंट एंड मसल्स नरम होकर के अच्छे चलने शुरू हो जाते हैं। और जब सब कुछ अच्छा होने लगता है तो आप क्या कहते हैं, यार हम नहीं जोड़ा दे दर्द होते, अब नहीं यार वो अर्थराइटिस पेन होती, इलाज हो गया बिना दवाई के। इनर ऑर्गन्स जब काम करने लगे, जब आपका पैनक्रियाज ने फुल एफिशिएंसी पे आपके लिए इंसुलिन बनाना शुरू किया, आपके जो लिवर ने अच्छे जूसेस बनाने शुरू किए, आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम खत्म हुई, आपने कहा वाह बिना दवाई के ठीक हो रहा है। स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी, ग्लो ज्यादा अच्छी आई, आपको लग रहा है वाह जवानी आ रही है, हार्ट फंक्शन अच्छा हुआ, तो बीपी जा रहा है, ब्लॉकेज खत्म हो रही है, अरे वाह बिना दवाई के काम हो रहा है। और बाल जब काले होने शुरू हुए, जो हो गए उड़ गए, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, बहुत सारे बाल आ चुके हैं और मेरे हाथ में आते हैं, मैं अब पकड़ सकता हूँ। और मजे की बात, 64th ईयर में जो बाल उग रहे हैं वो काले उग रहे हैं। अंदर खराबी नहीं थी, कैरियज की खराबी थी, इसने सिर्फ वो कैरियज ठीक किया है, तो अब सब कुछ ठीक होना शुरू हो रहा है। हेयर क्वालिटी, ब्रेन फंक्शन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, शॉर्ट मेमोरी लॉस, अरे
अभी फोन पे बात की, आपने कहा कि यार मुझे ना 10 मिनट बाद तो फोन कर देना और ये चीज तैयार करके रखना। हाँ, मैंने बात करते हम करी, और तब उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि किससे बात हुई थी, उसने क्या कहा था, मुझे क्या करना है, इतना ही भूल जाता था। पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन बहुत हद तक रिकवर हो चुका। शॉर्ट मेमोरी लॉस, पुरानी बातें हैं, हाँ। अरे आज भी पूछ लो पहली क्लास में पहले पेज पे क्या लिखा था, और 5वीं क्लास में पोएम क्या थी, ये क्या थी, डेफिनेशन क्या थी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की फॉर्मूलाज क्या थे, एवरीथिंग आई कैन 1 मिनट में आपको रिप्रोड्यूस कर सकता हूं। लेकिन अब भी जो बात की थी वो चली जाती थी। ये इसको अल्जाइमर्स बोलते हैं कहीं, तो इसका भी इलाज अपने आप होना शुरू हो गया बिना मेडिसिन के। तो जब अपने आप ये सब कुछ अंदर ठीक हो रहा है, तो ये बदलाव आप देख सकते हो। मार्च 6 को ऐसा, जून 10-22 को ऐसा, नवंबर 5-22 को ऐसा, और 25 मई को ऐसा। तो आपको बहुत शानदार फर्क दे सकती है, और इस फर्क के साथ आप अकेले नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ये अभी आया है। इंडिया में प्रोडक्ट 100 कंट्रीज में ऑलरेडी, पूरी पूरी फैमिली जिसके ऊपर है। ये हैप्पी जिंजिनो फैमिली है जो आराम से इस प्रोडक्ट को यूज करती है, और सारे के सारे देखिए कितने ब्राइट, आप किसी भी एज ग्रुप में है तो आप भी ऐसा बन सकते हैं। इवन यू कैन अचीव दिस गोल। और ये काम कैसे करता है, इसके ऊपर आज थोड़ा सा समय निकालते हैं, इस पे बात करते हैं। ये बेसन की बर्फी से इमरान, ये क्या है? बेसन की बर्फी अगर आपको नहीं बनानी आती, आपने कहा क्या होता है, चाशनी में भून के और घी में बेसन को तल के उसमें डाल दो, मिक्स करो, उसको ऐसे जमा दो, आपने जमा दिया, बन गई बर्फी। लो। लेकिन जब आप इसकी बर्फी को काट के उठाने लगे तो फिर से चूरा हो गई, बर्फी तो बनी नहीं। अब क्योंकि आपको तजर्बा नहीं था इसलिए ये बर्फी नहीं बनी, पाउडर ही रह गई। अब जिसको तजर्बा था तूने कहा क्या कर रहा है भाई, बड़ा सिंपल है ना, ये अब मैं सारा बनाऊं? नहीं, कुछ नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा हीट कर दे, गर्म कर दे, इसको फिर से वो मोल्टन स्टेज में ले आ हल्की सी, और जिस प्लेट में बना चिपकाना है उस प्लेट में एक लेयर लगा दे ऑयल की, पतले से। अब उस आपने एक ऑयल की लेयर लगा दी, अब चिपकाया, सब कुछ जैसा पहले था वैसा ही होगा, ये भी चिपकेगी, लेकिन उसके बीच में एक मीडियम है जो इसे उस प्लेट के साथ चिपकने नहीं देगा। जैसे ही आप काटोगे ये उठ जाएगी, उठेगी तो फिर से आपकी बर्फी बन जाएगी। तो ये जो एडिशनल लेयर है, बस ओमेगा 3 का यही काम है। आपकी वेन्स के अंदर जो थिक ब्लड चल रहा है, ये थिक ब्लड के अंदर शुगर कंटेंट है, उसकी आदत है चिपकनी। वो जहां पे एक चिपक गया दाना, तो उसके बाद जब भी आते जाते तो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को अपनी कॉलोनी वहां बनाएगा। ये आपकी ब्लॉकेज कहलाएगी। अब यही कह रहे हैं ना, अब ये एक ब्लॉकेज बन गई। अब आपने ओमेगा 3 पीना शुरू कर दिया, ओमेगा 3 इसके ऊपर लेयर बना दिया, जैसे वो बेसन की बर्फी के लिए। अब इस प्लेट के ऊपर इसने लेयर बना दी। अब जब यहां से ब्लड गुजर रहा है तो इसमें से कुछ और चिपकने नहीं देता। जब और कोई चिपकने नहीं देता तो ब्लड फ्लो हो रहा है, एक स्लिपेज है, तो प्रेशर अब दिल को कम लगाना पड़ रहा है, आपका बीपी भी थोड़ा लो होना शुरू हो गया कंपैरेटिवली जितना हाई आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब क्योंकि आसानी से फ्लो चल रहा है, और जब फ्लो बार बार, आपने सुना होगा कबीर जी की बात कि करत करत अभ्यास के जड़ मती होत सुजान, रसरी आवत जावते सिल पर परत निशान। तो पत्थर पे भी वो रस्सी से बार बार आने जाने से निशान पड़ जाता है, पत्थर पे रस्सी निशान डाल देती है कि नरम सी चीज। तो ठीक उसी तरह जब इस ब्लॉकेज के ऊपर ब्लड आसानी से जाने लगा, आने लगा, तो ये धीरे धीरे ये ब्लॉकेज भी खत्म होनी शुरू होगी। ओमेगा 3 आपका बिना ऑपरेशन के ही आपके जो भी ब्लॉकेज है उनको भी खत्म कर सकता है, आपकी जो वेन्स हैं उनको क्लीन कर देता है। और जब ये क्लीन हो जाती हैं तो आपके अंदर का जो ह्यूमन बॉडी मैकेनिज्म है ये इतना शानदार है कि आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल, ट्रिलियन कितना बड़ा होता है, मोदी जी ने कहा था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे 140 करोड़ की आबादी वाले, और
ओपोजिशन वाले हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। 5 ट्रिलियन सुना भी है कितने होते हैं? इतने ही होते हैं जितने वो कह रहे थे। अब आपकी बॉडी में कम से कम 90 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। इतने सेल्स और इनके साथ कम्युनिकेशन। इस सेल को क्या कमी है? ये कम्युनिकेशन पहुंचती है ब्रेन को। उसे जो चाहिए ब्रेन ऑर्डर करता है आपके इंटेस्टाइन में, आपके प्रोबायोटिक्स को ये बनाओ, वो बना करके आपका ब्लड लेकर के जाता है, उसको सेल को पहुंचा के आता है। सेल ने खा पी के जो डेफिकेट किया होता है वो निकाल करके लेके वापस आता है और उसको वापस ला करके आपकी किडनी को देता है। तो अच्छा माल पहुंच रहा है, बुरा माल जो टॉक्सिन्स हैं वो टॉक्सिन्स वहां पे आपकी सप्लाई पहुंच रही है आपकी किडनी को, और ये सारा सिस्टम नॉर्मल चल रहा है। तो आप कहां से बीमार हो जाओगे? कहां से डेफिशिएंसी आएगी? हर सेल ने अपनी कम्युनिकेशन कर दी। और कम्युनिकेशन के लिए कितना फास्ट सिस्टम है, कभी सोचा आपने? आपकी बॉडी में इतनी वेन्स है, अगर उनको जोड़ दे, सब लोग अलग अलग कहते हैं पर कम से कम एक चक्कर तो अर्थ का लग ही जाता है आपके शरीर की वेन्स का। तो हार्ट 1 मिनट में 72 बार ब्लड पूरी बॉडी में घुमा देता है। तो आप समझ सकते हो कि अर्थ के 72 चक्कर लगा लेता है। तो ये क्यों है? यही कम्युनिकेशन के लिए। वहां से जो कुछ उसने मैसेज दिया वो मैसेज ब्रेन के पास आया, ब्रेन ने एनालाइज करके इसको क्या चाहिए वो आपके अंडर ऑर्डर किया, वो ब्लड में फिर उसने लोड किया, लोड ने जाके वहां पहुंचा दिया, वो जाके सेल की डाइट पूरी होगी, यंग और जवान अच्छे आप लगते रहे। ये क्या शानदार सिस्टम है, इतनी बड़ी साइंस है। अभी दुनिया में इससे बेहतर, इससे बेटर कोई और मशीन बनी नहीं है। सो यू आर द प्राउड ओनर ऑफ दिस वंडरफुल मशीन एंड यू आर द वन हु इज गोट टू टेक केयर ऑफ दिस मशीन एंड टू टेक केयर ऑफ दिस मशीन। एक छोटी सी सप्लाई देनी है आपने ओमेगा 3 की, बस अब रेगुलर बेसिस पे ओमेगा 3 दुनिया का दी बेस्ट सॉल्यूशन लेना शुरू कर दो और अपनी इस मशीन को शानदार तरीके से शानदार बनाइए। घर एक मंदिर है, गाना था ना, आपका शरीर भी एक मंदिर है। इसी में तो भगवान का वास है, पूरा सिस्टम उसका इसमें बसा है। तो भगवान की पूजा है अगर आप अपने शरीर को अच्छा कर लेते हो और अपने शरीर को अच्छा करने के लिए ओमेगा 3 पी लेते हो, तो इससे बढ़िया और क्या कर सकते हो अपने लिए, अपने भगवान के लिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।